Straight up to a top story after a social media campaign against the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad or ABVP currently went viral. Delhi University student Gurmeher Kaur has now alleged that she has been receiving rape and murder threats. Lady Shri Ram College student Gurmeher Kaur, who is in fact the daughter of Kargil martyr Captain Mandeep Singh, has said that she has received numerous hate messages over her stand on the issue of violence between members of the AISA and the ABVP workers in Ramjas College. Now, the root cause of the clash was an invite to JNU students Umar Khalid and Shaila Rashid to address a seminar on campus. Now, Gurmeher has approached Delhi Commission for Women to seek help. First things first, I really want to make the people out there, very famous people, calling me, questioning my nationalism and calling me an anti-nationalist. They don't understand patriotism. Okay? Secondly, what we started is not a political movement, which is what I really want everyone in the country to know. This is not about politics. This is not about political parties. It is about students, our campuses being safe from violent threats. Okay, and it doesn't matter what organization it comes from. Campuses are supposed to be safe from any kind of threat. Second, it's that nobody, no matter who you are, no matter what association, organization you belong to, cannot threaten women with rape. That cannot happen. So this movement is not for anybody. This is a students' movement. Okay, it is for the students, and it is so that our campuses are university campuses. What university campuses are for? Education, cultivating art, doing poetry, for drama, writing, studying. That is what campuses are for. Okay, and this is all I have to say about it. उन्होंने हमें स्क्रीनशॉट्स भी दिए हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से कुछ लड़के उनके पीछे पड़ गए हैं और बार बार उनको रेप की थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और दिल्ली महिला आयोग ने इसके ऊपर तुरंत कॉग्निजेंस लिया है। हम लोग एक लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं पुलिस कमिश्नर को, और हम चाहते हैं कि ये जितने भी लड़के हैं इनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, इनको तुरंत अरेस्ट करा जाए, और जो गुरमेहर कौर हैं और उनकी जो पूरा परिवार है इनके ऊपर इनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस वक्त दिल्ली पुलिस की बनती है और उन्हें तुरंत सुरक्षा प्रोवाइड करी जानी चाहिए। और हम लोग ये ट्रेंड देख रहे हैं आजकल कि जिसका मन आता है सोशल मीडिया के ऊपर वो महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, गलत तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं, और इतनी उनकी दबंगई हो गई है कि खुलेआम रेप करने की धमकियों पे धमकियां देते हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को इस केस में ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, इन सारे लड़कों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके इनको अरेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आगे किसी की हिम्मत ना हो कि किसी भी लड़की के ऊपर अभद्र टिप्पणी चाहे सोशल मीडिया में चाहे बाहर वो कर सके। गुरमेहर कौर एक स्टूडेंट है, कारगिल मार्टर की डॉटर है। उन्होंने एक ट्वीट करा था एबीवीपी के अगेंस्ट और उन्होंने पब्लिकली बोला है कि उनको रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। अभी आपसे कहा है कि ऐसे कोई धमकी आ रही है तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, जांच के बाद कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ होना चाहिए। तो देश में सभी को जीने का अधिकार है, फ्रीडम है। ऐसी कोई धमकी आती है तो पुलिस ने खामोश नहीं बैठना चाहिए। In fact, our reporter Deepa Rana gives us more details from Delhi University campus. I'm standing outside the Ramjas College where I just spoke to a few students also. They claim that there is no sort of violence in Delhi University. However, there is a huge security, a very tight security over here. There are a lot of police as well as army personnel over here, and now the ABVP is going to start their protest, and they're going to do a march to every college of DU, and then this they claim is only because to bring back the peace which has been lost after the Ramjas into controversy. This is Deepa Rana for Magic Bricks Now in New Delhi. जो रेप कमेंट्स और इस तरह का जो कुछ लड़कियों को रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, दे आर आउटराइट नेमिंग एबीवीपी इन दैट
Why are they naming ABVP? अगर देखिए, नहीं अगर किसी भी छात्रा को अगर रेप थ्रेट आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस से वो कंप्लेंट करे। अब तक हमारे नजर में और हमारे कानों तक ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को थ्रेट किया गया है। ये सब वही वामपंथी नक्सली लोग हैं जो जिनकी कोई ईमान धर्म नहीं बचा है। वो जिस देश में रहते हैं उस देश को गाली देते हैं, कश्मीर की आज़ादी मांगते हैं, बस्तर की आज़ादी मांगते हैं और देश विरोधी नारे लगाते हैं। वही उन्होंने जेएनयू में किया। अब उनकी नजर दिल्ली विश्वविद्यालय पर है और हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। एक बात बताइए, दिस girl who is claiming that she's getting rape threats from ABVP is a daughter of a Kargil martyr. So why is she getting rape threats regarding this? देखिए, अगर गुरमोहर कौर को अगर रेप थ्रेट आ रहे हैं तो वो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिसने भी उनको दिया है आप प्लीज उनकी कंप्लेंट कीजिए अगर ऐसा कुछ है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक सोच समझी साजिश है और गुरमोहर कौर एक आईएसआर एक्टिविस्ट है जो कि इस मामले में शामिल है और ये बड़ी शर्मसार कर देती है कि वो इस तरह अपने पिताजी का नाम यूज कर रही है, उन्हें बदनाम कर रही है। What about the other girls in DU? There's this tension created over here. As you can see over here also, today also, after the Ramjas controversy that erupted, there's total tension in DU. There was never a tension like this in DU. What do you have to say? Is it not because of ABVP? देखिए, हमारी तरफ से कोई टेंशन नहीं है। अगर आप देखोगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय का सामान्य छात्र आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ खड़ा है और लगातार अपने उनसे जुड़ रहा है। तो सामान्य छात्र को भी पता है कि अगर कोई हमारी माता को गाली देता है तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन इन वामपंथी कम्युनिस्ट लोगों ने हमारी पूरी भारत माता को, पूरे भारत देश को गाली दी है। तो कोई सामान्य छात्र ऐसा नहीं सुन सकता। और आज की डेट में युवा अग्रसर है अपने देश के लिए, तो वो देश के लिए सोचता है, देश के लिए करता है। और इन जैसे जो देश विरोधी जो नारे यहाँ लगाए गए हैं, जो देशद्रोह, उमर खाली जैसे जिन पे देशद्रोह का चार्ज लगे, वो उनको नहीं सुनना चाहते, वो नहीं देखना चाहते। और हमारी दिल्ली प्रशासन से डिमांड है कि ऐसे देशद्रोहियों को कैंपस में ना आने दिया जाए। But there's a thing called freedom of speech. Even if there are students of JNU or other universities who are coming to express their views, maybe against to what you think, but they have their own views. Why can't they come and express their views? फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, बिल्कुल हम नहीं बिल्कुल मानते। लेकिन उमर खालिद जैसे जो कि जेएनयू में बैन है, सस्पेंड किया गया है जेएनयू विश्वविद्यालय से, उसे हम अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं आने देंगे। और उसका पूरा अगर वो आएगा उसका पूरा विरोध किया जाएगा, क्योंकि वो देशद्रोही है, उस पर देशद्रोह का चार्ज लगा है। कोई आता है अपनी बात रखता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस दिन इवेंट हुआ था, हमें इवेंट से कोई समस्या नहीं थी, हमें समस्या थी कि उमर खालिद से, कि उमर खालिद जैसे देशद्रोही हम अपने कैंपस में नहीं आने देंगे और बिल्कुल नहीं आने देंगे। आप इंटेंशनली जानबूझ करके इस तरह के लोगों को अगर कैंपसेस में बुलाएंगे, आपको पहले से पता था कि ये सारे एपिसोड्स जेएनयू में हो चुके हैं। कितना बड़ा पब्लिक रिएक्शन था इस पूरे एपिसोड्स पे जो जेएनयू में हुआ, तो आपको क्या जरूरत थी कि फिर से वो पूरा का पूरा एपिसोड आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्रिएट करें, जबकि रामजस कॉलेज के छात्र और प्रिंसिपल दोनों इसके अगेंस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश है। These are very sentimental issues in the first place, and they should not be they should be discussed, but not in this manner that they are hitting each other. Like two students group, they are coming together and they're hitting each other. So this is like a very unpeaceful kind of a environment. All this tension has created a different environment in the college. We have police everywhere, so it creates a bit of tension, like the security issues, like are we safe or not. So all these protests, they should go on, but to a certain level that they don't affect the children or that makes children feel unsafe. You can watch live TV on our website mpnow.in. Find us on Facebook at facebook.com/magicbricksnow. And don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at magicbricksnow. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/magicbricksnow.